Hello friends, I'm Shantanu, your coach, and today we are going to cover most important chapter of company law, that is directors. I have divided directors chapter into so many parts, and now we are going to cover the first part of the director. First, we will see the basic term which are described under the Companies Act, that is the term director. Director has been described under section 234. It is described as director means a director appointed to the board. ये आपको याद रखना है, the keyword director appointed to the board of the company. So this is a director appointed to the board of the company is treated as director. Second thing they have described under section 210, the board of directors or the term board. इन्होंने इसे ऐसे डिस्क्राइब किया है कि इन रिलेशन टू अ कंपनी बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर. ये कीवर्ड याद रखना है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. सो दीज आर द various directors of the company. Collectively they are called board of director or simply the board. ये जो डेफिनेशन हमने देखी है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, केस लॉ आ सकता है. जैसे कि पहली जो डेफिनेशन देखी थी 234 में, डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी. तो अगर किसी को, अगर आपने कंपनी में डेजिग्नेशन दे रखा है डायरेक्टर का बट ही इज नॉट ऑन द बोर्ड, तो दिस पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड एज डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट. Now we will see the most important question which can be asked in the exam, that is the legal position of a director. Basically जो director है उसकी legal position क्या है ये एग्जाम में पूछा जाता है. तो आपको 3 स्टेप में इसका आंसर लिखना है. सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी. यहां पे फिर से याद दिला दूं मैं आपको, एजेंट ऑफ द कंपनी and not the agent of the shareholder. So first thing you have to remember that directors are the agent of the company. If you can write the case law, it was decided in Ferguson versus Wilson का केस था जिसमें ये पोजीशन क्लियर की है कि directors are the agent of the company. Second thing you have to remember that directors are also to certain extent ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी रहती है उसकी देखरेख कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं. सो दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रस्टी फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. And the third and the most important thing you have to write that directors are in fiduciary position towards powers of the company which are given to them and the funds which they manage, funds of the company which they manage. So directors are in fiduciary position as with respect to the powers they enjoy and with respect to the funds they manage. This position was clarified in Smith versus Anderson. तो ये केस भी आप लिख सकते हैं. Here you have to understand the term fiduciary का मतलब क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए. Fiduciary means duty to care करने की ड्यूटी. सो सपोज एक पर्सन है, आपका फ्रेंड है, उसने आपको कुछ वैल्यूएबल चीज, उसकी खुद की वैल्यूएबल चीज कुछ समय के लिए आपको दे दी है संभाल के रखने के लिए. सो इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दैट वैल्यूएबल थिंग विच ही हैज गिवन टू यू एंड रिटर्न इट टू द योर फ्रेंड सेफली. So now whenever the question will be asked about the legal position of the director, you have to write 3 points. First, directors are the agents of the company, not agents of the shareholder. Second point, directors are trustee for the property of the company. And third, directors are in fiduciary position with respect to the powers of the company and the funds they manage. And the most important, the last thing which you have to remember, they can ask a question about the trustee, whether directors are trustee. So you have to write, yes, directors are treated as trustee of the property of the company to certain extent, because they are not trustee in strict legal sense, because in case of a trustee get the full property in his own name. The property is vested in the trustee, but here the property is still vested in the company's name, but they manage the property of the company. So they are trustee but not in a strict legal sense.
नाउ लेट्स सी द टर्म डीम्ड डायरेक्टर और शेडो डायरेक्टर. ये भी एग्जाम में आ सकता है, डीम्ड डायरेक्टर और अ शेडो डायरेक्टर. It means a person on whose instructions or directions the board of director of a company is accustomed to act, and this person shall be deemed to be a director of the company. Suppose ये एक board of director है किसी कंपनी का, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये किसके इशारे पे काम करता है? इस पर्सन के. तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्शंस देता है इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्ट अकॉर्डिंगली. सो दिस पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डायरेक्टर और शेडो डायरेक्टर. बट यहां पर एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है. वेयर द बोर्ड एक्ट्स ऑन हिज एडवाइस गिवन बाय हिम in his professional capacity, then such person will not be treated as a deemed director. For example, अगर कोई कंसल्टेंट है इस कंपनी का या कोई एडवोकेट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है अंडर द प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो ऐसे केस में इस पर्सन को जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है उसको डीम्ड डायरेक्टर या शेडो डायरेक्टर नहीं मानेंगे. नाउ लेट्स सी टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर. दो तरह के डायरेक्टर्स यहां पर बताए गए हैं. पहला है फुल टाइम डायरेक्टर. नाम से ही क्लियर है कि फुल टाइम अपना जो पूरा कंपनी को देता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज फुल टाइम डायरेक्टर. एंड द सेकंड इज पार्ट टाइम डायरेक्टर, मींस जो थोड़ा समय अपना देता है कंपनी को, दैट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट टाइम डायरेक्टर. Now, full-time director are also called as executive director. इन्हें executive director भी कहा जाता है. So, full-time director with their designation as managing director. इनका normally जो designation रहता है full-time director का, वो रहता है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर एक्सेट्रा. इस तरह के डेजिग्नेशन रहते हैं. फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूं कि होल टाइम डायरेक्टर अपना पूरा समय जो रहता है वो एक ही कंपनी को देता है. As compared to this, another is part-time director, जो non-executive director भी कहा जाता है इन्हें. non-executive who are professional and for their livelihood do not depend upon one company but serves on the board of director of large number of company. तो ये एक तरह के प्रोफेशनल डायरेक्टर्स रहते हैं. ये अपना पूरा समय किसी एक कंपनी को नहीं देते बट अपना बहुत सारी कंपनीज को अपना टाइम देते हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज में ये एज ए डायरेक्टर अपॉइंट रहते हैं. इन्हें हम कहते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर एंड दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. नाउ लेट्स सी द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर विच अ कंपनी में हैव. एज पर सेक्शन 149(1), every public company shall have at least 3 director, private company should have at least 2 director, and one person company should have at least 1 director in the board. So minimum number of director, एक डायरेक्टर होना चाहिए 1 person कंपनी के केस में, 2 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, एंड मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में. एंड व्हाट अबाउट द मैक्सिमम? मैक्सिमम डायरेक्टर अ कंपनी में हैव इज 15. तो ज्यादा से ज्यादा किसी कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं. अब बात आती है कि अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए किसी कंपनी को तो क्या हो सकता है? सो यस, अ कंपनी मे हैव मोर देन 15 डायरेक्टर्स एज वेल, बट फॉर दैट कंपनी विल हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन. Now let's see the position of women director under the Companies Act. नया Companies Act 2013 में women director का प्रोविजन मैंडेटरी कर दिया है सर्टेन कंपनीज के लिए. सभी कंपनीज को जरूरी नहीं है कि women director अपॉइंट करें. So let's see section 149(1) and 2 makes it obligatory, mandatory for certain companies to have at least 1 woman director. तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं ये आपको याद रखना है. पहला, every listed company should have 1 woman director, and second, every other public companies having a paid up share capital of 100 crores or turnover of 300 crores or more should have 1 director as woman director.
तो अब यहां पर केस आ सकता है। आपको पहले तो याद रखना है लिमिट एवरी लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है। दूसरा अदर पब्लिक कंपनीज, यहां पे याद रखना वर्ड पब्लिक कंपनीज जो बाकी की हैं जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या ज्यादा है उनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, या ऐसी पब्लिक कंपनीज जिनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे जाता है। अब यहां पर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल लेट्स से पेड अप कैपिटल 120 करोड़ है, तो क्या उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है? तो आंसर है नहीं, बिकॉज प्राइवेट कंपनी को ये मैंडेटरी नहीं है। ओनली अदर, एक तो लिस्टेड कंपनीज और अदर पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है या टर्नओवर 300 करोड़ है, उन्हीं को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। अब बात करते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर। ये भी एक नया प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। रेसिडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149(3) एवरी कंपनी, यहां पे याद रखना है आपको, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, एवरी कंपनी shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year in India। तो अब यहां पर देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा कि भाई यहां पर रेसिडेंट डायरेक्टर है या नहीं है, यू हैव टू सी द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। सो प्रीवियस कैलेंडर ईयर यहां पे बोला है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे 2015 है, आपका साल चल रहा है लेट्स से जनवरी 16 को ये क्वेश्चन है कि वेदर दिस कंपनी इज हैविंग अ रेसिडेंट डायरेक्टर और नॉट। तो मान लीजिए 3 डायरेक्टर हैं इस कंपनी में और 3 में से एक डायरेक्टर एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो पिछले कैलेंडर ईयर में, प्रीवियस कैलेंडर ईयर लाइक 2015 जनवरी से दिसंबर तक एटलीस्ट 182 डेज वो इंडिया में रहा हो, तो ऐसे केस में ये पर्सन रेसिडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। एंड एज पर सेक्शन 149(3) एवरी कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी हो, हर कंपनी के लिए ये जरूरी है कि एटलीस्ट वन डायरेक्टर उसका ऐसा हो जो रेसिडेंट डायरेक्टर हो। नाउ लेट्स सी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन। एज पर सेक्शन 149(4) एवरी लिस्टेड, वर्ड याद रखना, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall have at least minimum 1/3 of the total number of directors as independent directors। इसका कहने का मतलब यह है कि हर लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3 जो डायरेक्टर्स होंगे, टोटल डायरेक्टर में से 1/3 डायरेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब वापस से दो चीजें ध्यान से समझ लीजिए, ये जो प्रोविजन है ये लिस्टेड कंपनी के केस में है। सो एवरी लिस्टेड कंपनीज must have at least यानी minimum 1/3 directors as independent director। फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी के केस में मान लीजिए एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जिसके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसमें से एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये जो कंडीशन है मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ये लिस्टेड कंपनी के लिए है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इट में प्रिस्क्राइब द मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो लिमिट है वो अदर पब्लिक कंपनीज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल करा सकती है।